Hello dear children. So today we are going to discuss about the mind map or the concept map for chapter 3 heat for class 7. So in this chapter we have studied about heat. Heat is what? Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness, right? तो जिसको हम feel कर सकते हैं, that is a heat. But इस chapter में whatever we have studied, now we are going to discuss out today on one page all the concepts, all the topics, all the definitions to just recapitalize and revise that chapter. So first of all, in this chapter we have studied about heat. So what can be the effects? My dear children, what can be the effects of heat if we talk about? If we supply heat on a body, so what can be there? There may be few changes, right? First we can say change in dimension. Change in dimension means अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो that means dimensions में length change हो सकती है, breadth change हो सकती है, right? चीज जो अगर स्मॉल है, स्फेरिकल है, तो उसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है, राइट? सो चेंज इन डायमेंशन, जब भी बेटा चेंज इन डायमेंशंस होती हैं तो इसको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मींस कि चीज एक्सपैंड कर रही है, थर्मल मींस कि हीट की वजह से एक्सपैंड कर रही है, राइट? ओके. द सेकंड इज व्हेन द हीट कैन बी गिवन, it can cause a chemical change. If we are providing heat to an object, so it can produce a chemical change. Next is it can change the state. Change of state. जैसा कि अगर आप सॉलिड को गर्म करते हो, then what will happen? It will become liquid. लिक्विड को गर्म करते हो तो वो वेपर्स बनने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो चेंज ऑफ स्टेट भी हो जाता है. देन द वेरी कॉमन थिंग इज चेंज ऑफ टेम्परेचर. अगर इनमें से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इफ यू विल प्रोवाइड, इफ यू विल गिव द हीट टू दैट ऑब्जेक्ट, राइट? ओके. नाउ these are the effects. One is the change of state, one is the change in dimension, one is the change in temperature, right? And one is the, we can say, chemical change. Chemical change भी हो सकता है. Okay. Now the question is, if it is a physical quantity, if heat is a physical quantity, physical quantities बेटा वो होती हैं जिनको हम measure कर सकते हैं. तो heat को हम कैसे measure कर सकते हैं? Measured by that we can say measured by, because it's a physical quantity, so measured by a quantity that is known as very common temperature. So don't confuse about heat and temperature, they both are different things, right? Heat is a form of energy जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं अगर हम बात करें, and temperature is the degree of measure of hotness of or coldness of the body, that is temperature, right? अब temperature के भी different units हैं. कौन कौन से different units हैं? There are 3 different units which we are going to discuss about one by one. So here are units, right? One is डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, राइट? वेरी कॉमन. एंड वन इज फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, बट वी कैन से डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? एंड थर्ड विच इज वेरी कॉमन, दैट इज केल्विन. In class 7 we studied about degree Celsius and degree Fahrenheit, but Kelvin के लिए you will study about in class 9 also, when you will be doing the conversion of the temperature from one
unit to another. So these are the three basic unit: degree Celsius, Kelvin and degree Fahrenheit, which you have to keep in mind. Now heat is measured by a quantity, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर से। अब हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास है एक डिवाइस। नाउ टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, राइट, जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। इज इट क्लियर? अब थर्मोमीटर भी अलग अलग टाइप्स के हैं, दो तरह के बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? देयर आर टू टाइप्स, वन इज क्लिनिकल, वन इज लेबोरेटरी। मीन्स clinical thermometer is used to measure the temperature of human body, right, and लेबोरेटरी वाला जो है वो हमें लेबोरेटरी में ही हम यूज़ करते हैं जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, तो दैट कैन बी यूज्ड। सो हियर वी कैन मेंशन आल्सो यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, राइट। Whereas जो लेबोरेटरी है that is used in laboratory thermometer will be used in laboratories, used in laboratories. So this is about the thermometer, but this is not an easy task. We have to be very careful while using this thermometer. सो थर्मोमीटर, अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें, आपने देखा होगा ग्लास, नैरो ग्लास ट्यूब होती है उसके अंदर, राइट, एंड मर्करी इज द लिक्विड विच इज यूज्ड इन दिस। मर्करी को हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट्स शाइनी, इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स, राइट, एंड इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जैसे हमने बताया था ना कि चेंज इन डायमेंशन, तो उसमें थर्मल डायमेंशन होती है कि वो अपनी लेंथ इंक्रीज कर लेता है, ओके। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है उसमें एक किंक है कि व्हेन यू विल टेक आउट द थर्मोमीटर आउट और उसको आप रीडिंग ऐसे रीड करते हो, तो वो जो मर्करी अपने आप नीचे नहीं आएगा जब तक आप उसको जर्क नहीं करोगे। बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, द मोमेंट यू विल टेक इट आउट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसे ही इंसर्ट करना पड़ता है, द मोमेंट यू विल टेक इट आउट तो मर्करी अपने आप नीचे आना लगता है। तो व्हेन यू हैव टू रीड द रीडिंग फ्रॉम द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उसको ऐसे ही इंसर्ट करके रखना है और इंसर्ट किए किए ही उसकी रीडिंग लेनी है, ओके। यू विल नॉट डू दैट के टेक इट आउट एंड देन यू विल नोट डाउन द रीडिंग, ओके। तो बड़े ही ध्यान से समझना है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब इसमें जो प्रिकॉशंस हमने फॉलो करनी है बेटा, थर्मोमीटर को यूज करते हुए, we have to follow some precautions. What are these precautions? So these precautions are should be washed before using. जब भी आपको थर्मोमीटर को यूज करना है तो आपको क्या करना है, उसको वॉश करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर बेसिकली। देन शुड बी, जब उसको रीडिंग लेना है तब उसको कैसे पकड़ना है, ऐसे। आप देखते हो कि जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इफ दे आर यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, दीज डेज दे आर यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर, बट अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर को वो ऐसे ही रीड करते हैं, ऐसे या ऐसे नहीं करते, राइट। तो शुड बी हेल्ड हॉरिजॉन्टली, व्हाइल रीडिंग। जब भी रीड करना है उसको हॉरिजॉन्टली ही होल्ड करना है, राइट। सी शुड नॉट बी हेल्ड बाय बल्ब, हेल्ड बाय बल्ब। जो उसकी स्ट्रक्चर है, थर्मोमीटर भी ऐसा ही है, यहाँ पे उसका बल्ब होता है इसी मार्कर की तरह, दिस इज लाइक अ बल्ब। तो जब यहाँ से पकड़ के आपको रीडिंग लेनी नहीं है, हमेशा यहाँ से टच करके रीडिंग नोट डाउन करनी है, राइट।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शुड बी हैंडल विथ केयर बिकॉज मर्करी है, ओके, एंड इट इज वेरी टॉक्सिक, इट इज वेरी डेंजरस. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while taking the reading by using this. Okay, so I think that is all clear about heat. एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. हीट के लिए क्या है कि हीट में हमने किया है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. इफेक्ट्स क्या होते हैं, जब भी हीट प्रोड्यूस होगी तो फ्यू इफेक्ट्स इट विल प्रोड्यूस. फर्स्ट क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उस बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं, लेंथ बढ़ सकती है, ब्रेड्थ बढ़ सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो डायमेंशंस उसकी चेंज हो सकती हैं. देन इट मे प्रोड्यूस अ केमिकल चेंज व्हेन द हीट विल बी सप्लाइड, तो केमिकल चेंज कैन बी प्रोड्यूस्ड. चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकती है. जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी बन सकती है. चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर इनमें से कोई चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बॉडी गर्म तो होगी, तो दैट मीन्स उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा. अब हीट को वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज टेम्परेचर. और टेम्परेचर के तीन तरह के बेसिकली यूनिट्स हैं. वन इज डिग्री सेल्सियस, वन इज फ़ारेनहाइट, वन इज केल्विन, राइट. तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन आर द 3 यूनिट्स. अब टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं बाय डिवाइस दैट इज नोन एज थर्मोमीटर. थर्मोमीटर जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, राइट. लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज. क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या है कि देयर इज अ किंक, बट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर देयर इज नो किंक. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम जब यूज करेंगे वी हैव टू फॉलो सम प्रिकॉशंस. वन, इट शुड नॉट बी होल्ड, it should not be held vertically, it should be held horizontally, right. Secondly, when you are measuring the temperature of a body, it should be washed before using. हमेशा वॉश करना है, जर्क करके उसके जो मर्करी लेवल को है वो नीचे लेके आना है. बिकॉज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस तक क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसकी रेंज दिखेगी आपको. बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता. फाइन. एंड इट शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब से नहीं पकड़ना है कभी भी. एंड इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर, हमेशा उसको बड़ा ही केयरफुली और बड़ा ही ध्यान से यूज करना है, राइट. सो दिस इज अबाउट द हाफ पार्ट और द हाफ माइंड मैप फॉर हीट चैप्टर, इंक्लूडिंग इफेक्ट्स ऑफ हीट, टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड प्रिकॉशंस, right. And rest of the topics you will be watching in the part 2. Thank you so much for watching the video.